Okay. Now we'll be doing write the converse, inverse and contrapositive of the following. I hope I have told you in the last class that what is converse, inverse and contrapositive. I hope you guys remember. Even if you guys don't remember, I'll tell you again. Okay. Now see over here. If if your condition is like this, suppose if P then Q is given, okay, then what is its converse? The converse will be written as Q then P. You just have to interchange them. What will be the inverse? The inverse can be written as negation of P then negation of Q. This is what the inverse of this statement. The converse of this statement is this. The inverse of this statement is this. And what is contrapositive? The contrapositive is you have to reverse also and you have to take the negation also. That is negation of Q then negation of P. Fine. So these are converse, inverse and contrapositive. Fine. Okay. Just a moment. Akshu, light lagana ja. Now what is given over here? If it snows, then they do not drive the car. Okay. So for the first question, what they have given, if it snows, then they do not drive the car. So for the first question, we will try to write the converse, inverse and contrapositive of the statements. Okay. Now let us say let P be a statement that is it snows. Okay. And Q be a statements they do not drive the car. They do not drive the car. This is what the statement. We have just defined them. Right now the given statement in symbolic form is it is conditional, right? If it snows, then they do not drive the car. That means P then Q it is, right? So its converse will be Q then P. That means therefore the converse of the statement is converse of the statement is what? If they do not drive the car, Q is what? Converse of the statement is what? If they do not drive the car, if they do not drive the car, then what? It does not snow. It does not snow. Are you getting it? How we have written the converse of this? Please type yes or no in the chat box if you are getting it or not. Yes guys, please type yes or no in the chat box. Okay, Charul. If they do not drive the car, then it snows. Then it snows. Then it snows. That's it. This is what the statement. Okay? Then it snows. Now the next. How to write the inverse? Inverse of the statement is inverse how you will write? That is negation of P and negation of Q. So if this is P and Q and this is the condition, then its inverse is negation of P then negation of Q. Then inverse of the statement is P is what? It snows. If it does not snow, if it does not snow, then what does mean Q? They do not drive the car. Then negation of that is they drive the car. If it does not snow, then they drive the car. Okay? Then they drive the car. I hope you guys have understood how to convert the statement to inverse. Next, contrapositive.
राइट। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे होगा? दैट इज negation of q then negation of p, negation of q then negation of p. How you will write? if they drive if they drive if they drive then it does not snow. इट देखो नेगेशन ऑफ पी करना है ना, सो वॉट एवर द इट पी स्टेटमेंट क्या है, इट स्नोज, तो नेगेशन ऑफ पी क्या होगा, इट डज नॉट स्नो, देन इट डज नॉट स्नो। गाइज ये क्लियरली आपको समझा या नहीं समझा? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स यस और नो। यस, देवेशी, प्राची, चरुल, ओके प्राची, देवेशी, ओके फाइन, वेरी गुड, एंड चरुल ऑल्सो। सर लास्ट क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ? देखो ये नेगेशन ऑफ पी है, नेगेशन ऑफ क्यू है, सॉरी, दे डू नॉट ड्राइव द कार है, तो नेगेशन उसका क्या होगा, दे ड्राइव द कार। ये क्या होगा, इफ दे ड्राइव द कार, एक्चुअली यहां पर द कार आएगा, इफ दे ड्राइव द कार, ओके, इफ दे ड्राइव द कार देन, ये देन हो गया, और नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी क्या होगा, इट स्नोज, सो देन इट डज नॉट स्नो। क्लियर है? या चलो, ओके वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट, नाउ अगेन यहां पर ये सेकंड क्वेश्चन भी जो है, इफ ही स्टडीज देन ही विल गो टू कॉलेज, वैसे ही आपको ही स्टडीज को पी देना है, ही विल गो टू कॉलेज को क्यों देना है, और इसी हिसाब से आपको कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव कर लोगे। शुड आई स्किप दिस क्वेश्चन? प्लीज टाइप स्किप इन द चैट बॉक्स। कर लोगे ना आप लोग? या वेरी गुड। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अ मोमेंट। Now your next question is, with proper justification state the negation of each of the following। ठीक है, आपको नेगेशन बताना है इसका। पहले तो नेगेशन बताने से पहले आप, आई होप आप लोगों को ये याद होगा दैट P then Q is written as, P then Q is equivalent to negation of P or Q। फाइन, इट इज नेगेशन ऑफ P और Q, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन स्टेट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन क्या होगा, नेगेशन ऑफ दिस होल, दैट P then Q और P then R। अब ये पूरे इसका नेगेशन क्या होगा, पहले इसको नेगेशन लग जाएगा, दिस इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ P then Q, और ये और का हो जाएगा एंड इसका ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ P then R। अब P then Q को हम क्या लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P और Q, राइट। देखो यहाँ पर P then Q can be written as negation of P or Q, so what we will write, P then Q is negation of P or Q, and ये negation as it is, P then R को हम क्या लिख सकते हैं, negation of P और R। Similarly जैसे ये लिखा वैसे ये भी लिखा है। Now negation of this statement is equivalent to, negation of this is P and negation of Q, ये and as it is, अब इसका negation क्या होगा, P and negation of R। So this is final, this is what the negation of this statement, इस statement का negation क्या होगा, ये होगा। Is this clear? Please type yes in the chat box। आपको ये clear है या फिर नहीं है? Do you have any doubts? You can type in the chat box, I have a doubt, or you can also type I did not understand if you did not understand। Guys, I can't see yes or clear from any one of you। Okay Charul, fine। Now the next, अब ये डबल इंप्लीकेशन का भी कर लेते हैं, सेकेंड वाले। Now how we will solve? देखो यहां पर P डबल इंप्लीकेशन Q, अगर आपको डबल इंप्लीकेशन है उसको भी सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। P डबल इंप्लीकेशन Q है,
दैट मीन्स व्हाट, पी होगा तो क्यू होगा और क्यू होगा तो भी पी होगा, मतलब दोनों हो रहा है। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन है, दिस कैन बी रिटन एज पी देन क्यू एंड क्यू देन पी। ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। द पी डबल इंप्लीकेशन क्यू कैन बी रिटन एज पी देन क्यू एंड क्यू देन पी। ठीक है, तो यहां पर देखो, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब आपको क्या लिखना है, नेगेशन ऑफ दिस। सो नेगेशन ऑफ दिस होल, दैट इज पी डबल इंप्लीकेशन क्यू और negation of q then negation of r, right? Now you need to do the negation of this whole statement। अब दोनों के बीच में यहाँ पर और है, पहले इसको क्या करोगे, negation of disjunction करोगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखना भी जरूरी है। सो negation of this whole will be negation of p then p double implication q and negation q then negation of r। यहाँ पर हमने किस चीज का negation किया वो लिखना जरूरी है, that is negation of, लास्ट समय भी लिखना जरूरी था बट मैंने लिखा नहीं, नेगेशन ऑफ व्हाट वी हैव डन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ठीक है, उसके बाद अब इस स्टेटमेंट को आप पहले सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज इक्वल्स टू नेगेशन, नेगेशन तो बाद में करोगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे। दिस कैन बी रिटन एज पी देन क्यू एंड क्यू देन पी बराबर, एंड नेगेशन ऑफ इसका करना है तो पहले तो आपको इसे सिंप्लीफाई करना होगा। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए नेगेशन ऑफ दिस, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू और नेगेशन ऑफ आर। क्या आप यहां पर आप रीजन क्या लिखोगे, सिंस p then q is equivalent to negation of p or q, this is the reason which you will give to solve। okay, इसके बाद अब इसका नेगेशन कर लेते हैं। सो दिस इज नेगेशन ऑफ p then q, एंड का नेगेशन हो जाएगा और नेगेशन ऑफ q then p बराबर, यहां पर एंड एज इट इज। अब ये इसका नेगेशन हम बाद में करेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज q और नेगेशन ऑफ r। यहां पर हमने क्या किया, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड नेगेशन ऑफ कंजंक्शन किया और कुछ नहीं किया। व्हाट यू विल राइट ओवर हियर, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। गाइज अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है प्लीज आस्क, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन इट इज। ठीक है, क्यों नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, बिकॉज इसका नेगेशन किया हमने, राइट? यहाँ पर मेन जो किया आप वो लिखोगे। इसके बाद आप इस स्टेटमेंट को उसके फॉर्म में लिखोगे। दिस कैन बी रिटन एज नेगेशन ऑफ p और q, और दिस कैन बी रिटन एज negation of q और p, and negation of this whole will be negation of, नहीं, ये हो जाएगा आपका negation of q and r। यहां पर हमने क्या क्या किया, नेगेशन ऑफ हमने पहले तो इम्प्लीकेशन सॉल्व किया, p then q कैन बी रिटन एज नेगेशन ऑफ p और q, और क्या सॉल्व किया हमने, नेगेशन ऑफ नेगेशन किया क्या यहाँ पर, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन किया, एंड नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन किया। ठीक है, इसके बाद दिस इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ दिस इज व्हाट, p एंड नेगेशन ऑफ q, फिर ये और एज इट इज, नेगेशन ऑफ दिस इज व्हाट, q एंड नेगेशन ऑफ p, ये एंड एज इट इज, और ये जैसा है वैसे लिखो, नेगेशन ऑफ q एंड r। दैट इज हो गया। नाउ ओवर हियर अब इसके आगे और कुछ नहीं होगा, दैट्स व्हाट, दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। क्लियर है आपको? प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स इफ दिस इज कंप्लीटली क्लियर टू यू। यस, ओके। देवेशी, व्हाट अबाउट यू? ओके, वेरी गुड। नाउ सिमिलरली आपको बाकी सम भी जो है ये थर्ड वाला भी आप कर सकते हो। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले आपको कुछ टेबल काफी अच्छे से समझना होगा।
ठीक है, देर आर सम लॉज, दिस टेबल यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब देखो ये टेबल याद करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट अगर आपको समझ में आ गया तो इट इज वेल एंड गुड। ठीक है, देखो अब अच्छे से समझ के लो, P और P का वैल्यू इन्होंने क्या दिया है। एक मिनट रुको, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, सो देन इट विल बी इजी फॉर अस टू एक्सप्लेन। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंडेपोटेंट लॉस। अब ये इंडेपोटेंट लॉस क्या है, P और P जो है आपका P ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको ट्रूथ टेबल पता है, जब और होता है तब क्या होता है ट्रूथ टेबल में, यहां पर देखो ट्रूथ टेबल कहां पे गया, हाँ ट्रूथ टेबल में देखो यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लो। जब एंड है तब दोनों ट्रू है तो ट्रू है, और है दोनों फॉल्स है तो फॉल्स है, अदरवाइज क्या है सारे ट्रू है। देन है ट्रू देन फॉल्स, बाई कंडीशनल है ट्रू देन इट इज ट्रू, एंड फॉल्स देन इट इज ट्रू। ठीक है, तो इसी चीज को याद रखते हुए आपको ये टेबल भी आ जाना चाहिए। ठीक है, इसी टेबल से ये भी डिराइव्ड है। देखो अगर P और P है तो आंसर P आएगा, इस ये ऐसे कैसे, देखो अगर आप P और P लिखते हो, ठीक है, दोनों का वैल्यू अगर आपने ट्रू लिखा तो आंसर क्या आएगा आपका ट्रू आएगा, दोनों का वैल्यू आपने फॉल्स लिखा तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। मतलब ये जो भी होगा ये दोनों का वैल्यू P P है ना, तो दोनों ट्रू होगा या तो दोनों फॉल्स होगा। अगर दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स है तो दोनों आंसर फॉल्स, मतलब इसका आंसर जो होगा वो P ही होगा। आर यू गेटिंग इट गाइस, समझा ये फर्स्ट, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। ये आपको याद कैसे रखना है, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होता है, दोनों फॉल्स होता है तो फॉल्स होता है, राइट। तो इस हिसाब से अगर P और P है तो आंसर क्या होगा, जो आप इनपुट करते हो वही आउटपुट आएगा, राइट। इसीलिए P और P का आंसर क्या होता है, P ही होता है। P एंड P का भी आंसर P ही क्यों होता है, देखो यहाँ पर उसका भी बताता हूँ। अगर आप ट्रू करोगे, ट्रू एंड ट्रू का आंसर तो ट्रू आता है, ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू का आंसर क्या आता है, फॉल्स एंड फॉल्स का आंसर फॉल्स ही आता है ना। मतलब जो आप इनपुट करते हो वही आंसर आएगा, दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, दोनों फॉल्स होगा तो फॉल्स, मतलब जो P का वैल्यू रखोगे वही आंसर आएगा। आर यू गेटिंग इट, ये इंडिपेंडेंट लॉ समझा आपको, याद रह जाएगा आपको कैसे याद करना है, यूजिंग ट्रूथ टेबल यू कैन रिमेंबर। ठीक है, यूजिंग ट्रूथ टेबल यू कैन रिमेंबर। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या, पहले यहां पर इन्होंने यहां पर ब्रैकेट था, उसके बाद ये दोनों में ब्रैकेट लग गया, बट पूरे स्टेटमेंट में सिर्फ और है, पूरे स्टेटमेंट में और होगा तो एसोसिएटिव लॉ आप अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली अगर पूरे स्टेटमेंट में अगर आपका एंड है तो यहां पर अगर दोनों का ब्रैकेट है तो इन दोनों को भी आप ब्रैकेट लगा के आर को साइड में निकाल सकते हो। आर यू गेटिंग इट, दिस इज व्हाट एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ तो ये तो काफी इजी है, P और Q है तो Q और P लिख सकते हो, एंड P एंड Q है तो आप उसे Q एंड P भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखो यहां पर ये और है, यहां पर एंड है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या है एंड, और ब्रैकेट के बाहर क्या है और, तो इसे आप P और Q को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एंड देन P एंड R, P और R, और दोनों के बीच में ये वाला एंड साइन। ठीक है, समझ के लो कैसे लिखा गया है, P और Q, P और R, और इन दोनों के बीच में ये वाला जो देखो, जो ब्रैकेट के अंदर जो एंड था वो ब्रैकेट के बाहर आ गया, और जो ब्रैकेट के जो बाहर था वो ब्रैकेट के अंदर आ गया। समझ रहे हो, प्लीज टाइप यस और नो, क्लियर, आर यू गेटिंग इट गाइज। नो, ठीक है, चलो यहां पर बता देता हूं व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो अगर आपको P और Q एंड R गिवन है, ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू P और Q, ठीक है, इन दोनों को लेना है, जैसे हम करते हैं ना, देखो अगर आपका होगा 2 इंटू 3 प्लस 4 होगा,
So what I will write, this is also distributive, 2 into 3 plus 2 into 4, ऐसे करते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं? दिस इज व्हाट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, समझ रहे हो? वैसे ही यहां पर P और Q एंड P और R, अभी समझा? समझा ना? ओके चलो फाइन। सिमिलरली आप यहां पर देखो P एंड Q और R है, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज P एंड Q और P एंड R। समझ रहे हो? यहां पर भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा, उसके बाद आइडेंटिटी लॉस। अब ये आइडेंटिटी लॉ क्या है, एक मिनट रुको। यहां पर आइडेंटिटी लॉ आपको समझा देता हूं, हाउ टू रिमेंबर दिस आइडेंटिटी लॉ। देखो ये ऐसा है ना कि कंफ्यूजन होगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट कम्स। इसके अंदर C का मतलब है कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स फॉल्स, और T का मतलब है टोटोलॉजी। C स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या? फॉल्स, द स्टेटमेंट इज फॉल्स यू कैन से। एंड T स्टैंड्स फॉर टोटोलॉजी। आई होप आप लोगों को टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन पता होगा। जब सारे लास्ट टेबल में, जब लास्ट कॉलम में सारे वैल्यू अगर ट्रू होते हैं तो उसे हम टोटोलॉजी बोलते हैं, और सारे वैल्यू अगर फॉल्स होते हैं तो हम उसे कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं। यस और नो, आपको पता है कि नहीं पता है? यस और नो? या ओके। इसके बाद अब देखो P और C है, ठीक है, P और C, इसका आंसर क्या होगा? अगर मैं P का वैल्यू ट्रू रखता हूं, C का मतलब क्या? फॉल्स, ये फॉल्स ही है कंफर्म। P का आंसर अगर मैं ट्रू रखता हूं तो आंसर क्या आएगा? देखो यहां पर और एक बार बताता हूं, P और C है ना, अगर P का आंसर मैंने ट्रू रखा और ये तो फॉल्स ही है, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब फॉल्स, ट्रू और फॉल्स रखा तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स और फॉल्स आपका क्या होता है? फॉल्स और फॉल्स होगा, फॉल्स और फॉल्स होगा तो ही फॉल्स होता है, अदरवाइज बाकी सारे क्या है? ट्रू है। ठीक है, सो ऑन अ सिमिलर नोट, ये ट्रू और फॉल्स है तो आंसर आपका क्या आएगा? ट्रू आएगा। और अगर ये फॉल्स और फॉल्स है तो आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स। तो इसका मतलब जो वैल्यू यहां पर रखोगे वही आंसर आ रहा है, जो वैल्यू यहां पर रखोगे वही आंसर आ रहा है। तो P और C का भी आंसर क्या आएगा? जो आप यहां पर रखोगे वही आंसर आएगा। समझा आपको हाउ टू रिमेंबर दिस? P और C इज इक्वल्स टू P। गॉट इट और नॉट? प्लीज टाइप गॉट इट। If you have understood this, okay, got it, very good. Next, अब देखो P and C का, पहले ये वाला कर लेते हैं, P और T। अगेन P और T इज इक्वल टू, ये पता नहीं, चलो मैं भले उधर T लिखा हुआ है बट मैं यहाँ पर देखो ये ट्रू है हमेशा, अगर मैं इसे ट्रू रखता हूँ, ट्रू और ट्रू आंसर क्या आता है? फॉल्स, बिकॉज फॉल्स एंड नहीं, ट्रू और ट्रू आपका आंसर आता है ट्रू, बिकॉज फॉल्स और फॉल्स होगा तो ये आपका आंसर फॉल्स होता है, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज ट्रू। अगर मैं यहाँ पर ट्रू नहीं, यहाँ पर फॉल्स रखता हूँ, फॉल्स और ट्रू का भी आंसर क्या आता है? ट्रू ही आता है। तो P और ट्री का आंसर क्या आ जाएगा? T ही आएगा। कैन यू सी दिस? If it is a tautology, then it will be tautology only. Is this clear? Please type. Yeah, very good. Next, P and C. क्या है? P and C is equivalent to, आप लोग मुझे बताओ क्या होगा? आप अपने हिसाब से ट्राई करो। अगर मैं यहां पर फॉल्स रखता हूं, ठीक है, एक बार ट्रू रखता हूं, एक बार फॉल्स रखता हूं, आपको आंसर क्या आ रहा है दोनों में? दोनों में आंसर क्या आ रहा है? दोनों नीचे में, नीचे के इसमें दोनों में आंसर क्या आ रहा है आपको? यस, ट्रूथ टेबल याद है या नहीं है? दोनों में फॉल्स आता है, ओके। तो यहां पर क्या आएगा?
सी, वेरी गुड। सो आप दोनों में आपको फॉल्स आता है, मतलब अगर आप ये किसी एंड के साथ अगर पी एंड कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट को अगर आप कंबाइन करोगे तो इट विल बी अ फॉल्स ओनली एंड इट विल बी अ कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट ओनली, दैटफॉर इट इज सी ओनली। ठीक है। सिमिलरली यहां पर पी एंड टी है इज इक्वल टू, तो इसके लिए आप ट्राई करो, एक बार ट्रू रखो और एक बार फॉल्स रखो। क्या आ रहा है आपका आंसर? ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स, मतलब जो आपने रखा वही आंसर आया, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? पी। गॉट इट? ये आपका फॉर्मूला कैसे आता है ये आपको टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ठीक है, इट इज नॉट एक्सप्लेन इन योर टेक्स्ट बुक। अब ये कैसे याद रखना है मैंने आपको बता दिया। अगर आप सिर्फ ट्रूथ टेबल के 6 वैल्यूज जो मैंने आपको लिखाया था वो आप याद रखते हो तो सारे आपको याद हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट। ये हो गया आपका आइडेंटिटी लॉस। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट लॉस। कॉम्प्लीमेंट लॉस क्या है? कॉम्प्लीमेंट क्या है? देखो, पी और नेगेशन ऑफ पी, पी और नेगेशन ऑफ पी इज इक्वल टू, अब p की जगह में अगर मैं समझो p मेरा ट्रू है तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। नेगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा? ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का आंसर क्या आएगा? फॉल्स और फॉल्स ही फॉल्स होता है, अदरवाइज बाकी सारे ट्रू। तो ये आंसर ट्रू ही आता है हमेशा। अगर ये दोनों अगर फॉल्स मैंने रखा, फॉल्स और नेगेशन ऑफ फॉल्स, तो क्या होगा? फॉल्स और ट्रू, इसका भी आंसर ट्रू ही आएगा। तो आप कुछ भी कर लो, इसका आंसर ट्रू ही आने वाला है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या है? टोटोलॉजी। इज दिस क्लियर? यस और नो? अक्षु जरा पानी देना। यस, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज पी एंड नेगेशन ऑफ पी। अब ये भी वैसा ही है, उसी तरीके से आपका प्रूव होगा। ठीक है, यू कैन ट्राई इट, यू कैन गेट द प्रूफ। negation of tree is negation of tautology is a contradiction and negation of contradiction is tautology। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट। नेक्स्ट लॉ क्या है देखो आप। नेक्स्ट लॉ इज इन्वॉल्यूशन लॉ, लॉ ऑफ डबल नेगेशन। नेगेशन ऑफ नेगेशन करोगे तो आपको सेम स्टेटमेंट आएगा। नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू करोगे तो दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि हमने अभी इससे पहले भी आपने अप्लाई कर दिया। नेगेशन ऑफ पी और क्यू इज नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। अगर नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू है तो इट इज नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। सारे को उल्टा करना है, पी को नेगेट, एंड को नेगेट और क्यू को भी नेगेट। पी देन नेगेशन ऑफ क्यू, पी देन नेगेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू व्हाट? नेगेशन ऑफ पी और क्यू। फिर इसका नेगेशन अगर आप करोगे तो क्या होगा? पी, अच्छा, it is equivalent to this, they have said it is equivalent to negation of q, and that is called contrapositive law। ठीक है, you can remember this। ठीक है, दोनों को आप रिवर्स करोगे और दोनों को नेगेशन करोगे, then it is also true। ठीक है, now we will be using this all laws to solve the further exercise। अब देखो एक्सरसाइज 1.9 में क्या गिवन है, सी ओवर हियर। विदाउट यूजिंग द ट्रुथ टेबल शो दैट। अब क्या करना है आपको? अभी आपको ट्रुथ टेबल बनाना नहीं है। लास्ट एक्सरसाइज में क्या था? आपको आपको यू हैव टू ड्रॉ द ट्रुथ टेबल। बट अभी इस एक्सरसाइज में क्या है? यू डोंट नीड टू ड्रॉ द ट्रुथ टेबल, बट विदाउट ड्रॉइंग द ट्रुथ टेबल यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज इन दिस। ठीक है, तो अब देखो क्या आएगा आपका फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है? पी डबल इंप्लीकेशन क्यू इज इक्वल टू पी एंड क्यू और नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, लेट अस से इसमें क्या करते हैं, क्या करते हैं, लेट अस टेक, एक मिनट रुको, या लेट अस टेक द एलएचएस इक्वल्स। एलएचएस क्या है आपका? पी डबल इंप्लीकेशन क्यू। अब डबल इंप्लीकेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? पी देन क्यू
एंड Q देन P, लिख सकता हूं मैं ऐसे, राइट उसके बाद दिस इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ Q और P, लिख सकता हूं मैं ऐसे, बराबर। नेक्स्ट इज नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ Q और P, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे? अब क्या करते हैं, इसे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आपको बताया गया है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे, देखो यार, ये वैल्यू लेकर ये अंदर का जो वैल्यू है और वो आप बाहर लेके जाओगे, और ये जो बाहर जो एंड है वो अंदर लेके आओगे, सो इट विल बी नेगेशन ऑफ P, मैंने ये वाला वैल्यू यहाँ पर लिखा है, दिस वैल्यू रिटन ओवर हियर, और उसके बाद ये एंड और ये पूरा ब्रैकेट नेगेशन ऑफ Q और P, ये जो अंदर जो साइन था ये वाला, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, दैट विल कम आउटसाइड। उसके बाद Q एंड negation of Q or P, what we have applied, we have applied distributive law, we have applied distributive law. Now after this is equivalent to, अब यहां पर इसे भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या है, और नेगेशन ऑफ P एंड P, समझ रहे हो आप लोग? नाउ दिस इज Q एंड नेगेशन ऑफ Q, उसके बाद ये और बाहर आ जाएगा, Q एंड P, लिख सकता हूं मैं ऐसे। नाउ सी ओवर हियर, लेट अस राइट इट एज नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। यहां पर नेगेशन ऑफ P और P, अगर दोनों का वैल्यू अगर ट्रू रखता हूं तो एक ट्रू और एक फॉल्स होगा, ट्रू एंड फॉल्स, आंसर इज फॉल्स, राइट। अगर दोनों मैंने फॉल्स रखा तो एक फॉल्स और ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, द आंसर इज फॉल्स, एक फॉल्स होगा एंड ट्रू, द आंसर इज फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स होगा तो भी आंसर इज फॉल्स, सो एनीवे द आंसर इज फॉल्स ओनली, सो और कॉन्ट्रडिक्शन यू कैन राइट, ओके, और कॉन्ट्रडिक्शन, और यहां पर, और यहां पर अगेन यहां पर ट्रू एंड फॉल्स रखता हूं तो आंसर फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स रखता हूं तो भी आंसर आपका फॉल्स, सो यू कैन राइट कॉन्ट्रडिक्शन और Q एंड P, फाइन। अगर आपका कोई भी स्टेटमेंट के साथ और के अंदर अगर फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स आएगा, और ये ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आ जाएगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट का जो वैल्यू होगा वही आंसर आएगा, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, और यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन है, यहां पर अगर आप फॉल्स रखोगे तो आपको आंसर फॉल्स आ जाएगा, ये ट्रू रखोगे तो आपको आंसर ट्रू आएगा, मतलब ये इसका वैल्यू जो होगा वही आंसर होगा, सो दिस कैन बी रिटन एज Q एंड P। नाउ व्हाट इज योर रिक्वायर्ड RHS, देखो वही है P एंड Q और P and Q or negation of P and negation of Q. Can you see this? So this is equal to your RHS and you can say over here hence proved. ये आपको समझा या नहीं समझा, प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड। सो गाइज ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये लास्ट वाला है आपका लॉजिक का, दिस इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, सो यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। Now you guys tell me which question you want me to solve. I have already solved this first question. आप लोग बोलो वो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, विच क्वेश्चन यू वांट मी टू प्रूव, यू कैन टाइप इन द नंबर 2 3 4 5, कौन सा करो आप लोग बोलो, वही सम करेंगे। फोर्थ, चलो ठीक है, सबसे लंबा आपको फोर्थ दिख रहा है इसलिए आपने फोर्थ टाइप किया, आई नो दैट। चलो एनीवेज विल प्रूव दिस, ठीक है। क्या गिवन है, योर LHS इक्वल्स negation of R then negation of
P एंड Q, ये आपका LHS है, ठीक है। इसे प्रूव करने के लिए पहले तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है ना, ये इसे आप चेंज कर सकते हो, ये पूरा एक वैल्यू और ये पूरा एक वैल्यू पकड़ लो। सो P देन Q क्या होता है, नेगेशन ऑफ P और Q। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ नेगेशन R और Q, जो Q है आपका नेगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है। दिस इज व्हाट, यहां पर आप रीजन लिख सकते हो, दैट इज सिंस P देन Q इज equivalent to negation of P और Q, you can write a reason like this, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने पे तो क्या होगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन R इज R, और ये आपका एज इट इज, ये आपका ब्रैकेट में एज इट इज है ना, तो ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, नेगेशन ऑफ P एंड Q, इतना ही है। अब अगर आप इस नेगेशन को अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो वो भी सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू R, और इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो यूल गेट नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। अब सारे और है तो आप एज इट इज स्टेटमेंट रख सकते हो, दैट इज नेगेशन ऑफ P R, नेगेशन ऑफ R और नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। ये आपका LHS का वैल्यू आया। नाउ लेट अस सॉल्व दी RHS। RHS में क्या है आपका, योर RHS इज इक्वल्स टू व्हाट, ये आपका RHS में गिवन है। अब अगेन यहां पर क्या है, इंप्लीकेशन है, पहले इस इंप्लीकेशन को सॉल्व करो। इंप्लीकेशन मतलब ये पूरे स्टेटमेंट को आप एक एज अ स्टेटमेंट A और ये पूरे स्टेटमेंट को B पकड़ लो। सो A देन B का आंसर क्या होता है, नेगेशन ऑफ A और B। सो इसका आंसर क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू नेगेशन ऑफ Q देन R और डायरेक्टली B क्या होगा, नेगेशन ऑफ P, बराबर। नाउ नेगेशन ऑफ नेगेशन ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, नेगेशन ऑफ नेगेशन इज Q देन R और नेगेशन ऑफ P। नाउ Q देन R को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ Q और R और नेगेशन ऑफ P। सो दिस इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ Q और R, एक मिनट, यहां पर आपने सॉल्व करने के बाद यह आया ना, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। So actually you don't need a bracket over here. Okay, now this is negation of Q और R और negation of P। देखो सारे अगर और है दे आर कम्यूटेटिव। देखो ये लॉ देख लो, यहाँ पर एक बार लॉ और एक बार देख लो, यहाँ पर देखो P और नेगेशन और P और Q और R को आप क्या लिख सकते हो, P और Q और R, और या फिर पूरा ब्रैकेट हटा ही सकते हो आप, P और Q और R, समझ रहे हो। सो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट हटा दिया, एक मिनट, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट आता है बट हमने हटा दिया, ठीक है, बिकॉज सारे और ही है यहाँ पर, इसलिए यू कैन रिमूव द ब्रैकेट। ओवर हियर ऑल्सो यू कैन रिमूव द ब्रैकेट्स। नाउ दिस दे आर एसोसिएटिव, अभी आप इंटरचेंज कर सकते हो, यहाँ पर क्या है आर और, सो ये आर को आप यहाँ पर लिख सकते हो और नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, दिस वन और ये टू, ये दोनों सेम हो गया। सो देयरफॉर, सॉरी ये नहीं, this 2, then therefore you can say therefore LHS is equals to RHS, and therefore this the statement which we had, that is, and therefore without drawing the truth table we can say that this is equals to is equivalent to this, and over here we can write hence proved। guys clear है, आपको समझा या नहीं समझा, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स yes और no। आपको नहीं समझा तो ना लिखो, समझा तो हाँ लिखो। ये समझा या नहीं समझा आपको, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके देवेशी एंड चरुल, आपको समझा या नहीं, ओके चरुल फाइन। राज आनंद व्हाट अबाउट यू, आपको समझा या नहीं, ओके वेरी गुड, वेरी गुड।